My children are like not like this. मतलब टाइम पे पहुंचना है तो पहुंचना है, बात खत्म हो गई। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आफत आ जाए, मेरे बच्चों का टीचर वेट नहीं करे, मेरे बच्चों का 1 मिनट भी वेट नहीं करे। ये सीखा मैंने लाइफ में। और बीइंग अ टीचर मैंने भी ये सीखा है कि मुझे भी अपने बच्चों को वेट नहीं करवाना चाहिए। बच्चे मतलब तुम लोग स्टूडेंट्स, नेवर। क्या सिखाएंगे हम आपको अगर हम आपको वेट करवाएंगे तो? है, मुझे लगता है कि आप लोग शायद मेरी आदत खराब कर देंगे। वेट करते रहोगे बैठे बैठे लिंक का, फोन करते रहोगे, सर लिंक नहीं आया, अरे आ रहा है अभी। जैसे तुम आते थे वैसे तुम्हारा लिंक भी आएगा। क्यों फालतू में मेरे को ऐसा बना रहे हो आप? कई दिन हो गए देखते देखते मेरे को। कोई बात नहीं यार, गलत बात है। सो I told you about Max Muller, Frederick Max Muller, and that is not Indian. That person belongs to England, German. and by birth he Sir, was German. no belong to Germany, but now he belong to England because he has the citizenship of England. But he was born in Germany, but later on he moved to England and he took the citizenship of that country, and there he became a professor of modern languages. And he was a great admirer of India, and he told us that India is so great country that it can teach us so many things. It can give us the solution of many problems that today or in present time our mankind is facing. And I also told you a paragraph that what he thinks that if there is any paradise on this earth, that is in India. If there is any place where people thought about many problems, that is India. He was great admirer of literature of India, and uh, he also said that if we want to develop ourselves internally, definitely that is India that can develop us. That is very interesting lesson that I am teaching you in my own way. This is not for getting your marks. And I have nothing to do with your marks, what you get in your examinations. This is not my headache. But my work is to develop your skill, that I am doing properly, and I am happy that I am doing it with my all passion and my all interest and my all with my all hard work. But you have a great role in it. If you pay, if you play, but if you don't want play, then I can do nothing for you, not for anyone. So I am that was there was a recording of yesterday's lesson that I posted on YouTube, and I always send the link of the recording always in your groups. So I think all who are not present here yesterday, definitely they would have listened to that recording. Yes, sir. And also those who were present here also, I told them to listen to the recording 1 or 2 times. I also made you write some words, giving you the practice of listening, that how can just tracing the sound of any word you can write the proper spelling of any word. And I think 10-12 words were given to you to explore them by using your dictionaries. And I also told you the way how you have to explore those words in your dictionary just by putting those words on Google, and you can find out the words of those meanings. But if you have focus on the sound, you can also write down the spellings. And many a times I have told you that it doesn't matter much whether you are listening that word first time or second time or third time, but if you are so cautious at the time of listening, if you have focus on the sound, definitely you can write the spelling of that word. If not 100%, but 70%, 80%, you can write the correct spelling of that word. So
I'm trying my best efforts to develop you, but sometimes I become so much disappointed at your performances or at your manners and at your many things there are. So again, I am reading that paragraph. Now focus, because now you have the meanings of those words that were difficult for you yesterday. So I think you are ready for it. Recording is going on. So what did who was that person? Max Muller. And I gave weightage of his thought because he's not Indian. And however, he admired India, Indian culture, Indian system. So how now I am again reading this. So if I were to look over the whole world, try to understand. If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow, in some parts a very paradise on earth, I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has fully developed, some of its choicest gifts has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions to some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant. I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and of one Semitic race, that is Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more comprehensive, more universal, in fact, more truly human. A life not for this life only, but a transfigured and eternal life. Again, I should point to India. India is the only country that thinks that we have a life after death. And there is a science about it. And I am happy that a person who is not Indian is telling this all to us. I know. Now I'm moving ahead. समझ में आ रहा है? सर हम्म, के बाद में क्या था? हम्म? वर्ड प्लेटो के बाद में वर्ड कौन सा था? कांट. एक्चुअली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्लूटो और कांट दो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, हमारे यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, उनकी बात हो रही है. और यहाँ पर पता है क्या कह रहा है ये, कि जिन लोगों ने, जो यूरोप के लोग हैं, जो अदर कंट्रीज के पीपुल हैं, जिन्होंने कांट को, प्लूटो को, इनको अगर स्टडी किया है, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपने उनको स्टडी कर लिया है, उसके बावजूद आपको इस बात की जरूरत है कि आप इंडियन कल्चर को, इंडियन सिस्टम को स्टडी करें. बिकॉज जो कुछ आपने पढ़ा है ना, प्लूटो और कांट और जो भी कुछ दूसरे जो रहे हैं, उनका पढ़ा हुआ इनफ नहीं है. मेरी बात समझ में आ गई आपको? आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए चीजों में. सर सुनिए. हाँ.
सर एटर्नल लाइफ को मतलब शाश्वत जीवन, जीवन जो कभी खत्म नहीं होता, ये हम मानते हैं इस बात को। हम इस बात को मानते हैं कि हम यहाँ पर इस धरती के ऊपर अगर हैं तो वी आर नॉट फर्स्ट टाइम। पहले भी हम कितनी बार पैदा हो चुके हैं और कितनी बार मर चुके हैं। हम हम खत्म कहाँ हो रहे हैं? मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मैं पहले भी कई बार मर चुका हूँ और पहले भी कई बार पैदा हो चुका हूँ और आगे भी मरता रहूंगा, आगे भी पैदा होता रहूंगा, तो मैं खत्म कहाँ हो रहा हूँ? बताओ आप मेरे को। खत्म तो शरीर हो रहा है, मेरे अंदर जो जीव है वो कहाँ खत्म हो रही है? हो रही है क्या? लाइफ का मतलब जीवन, नॉट बॉडी। लाइफ मीन्स नॉट बॉडी। लाइफ मीन्स नॉट बॉडी यार। बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो उसके अंदर जीव है, जो उसके अंदर दैट इज सॉल, वो कहाँ खत्म होगी? वो तो चलती रहेगी, उसकी जर्नी तो चलती रहेगी, चलती रहेगी उसकी जर्नी। आज किसी शरीर में है, कल किसी और दूसरे रूप में आ जाएगा, परसों किसी और रूप में आ जाएगा। आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने, पता नहीं पिछले जन्म में क्या रहूंगा, क्या पता। ये हम कहते हैं, हम मानते हैं इस बात को, इसका साइंस है पूरा का पूरा। ये एटर्नल लाइफ हो गई ना, एटर्नल लाइफ जो कभी जीवन कभी समाप्त, शाश्वत चलने वाला। शरीर खत्म हो सकता है, आत्मा कभी नहीं मरती है, सुना होगा ना? ये सर आत्मा से शरीर बनता है। नहीं, आत्मा से कोई शरीर वरीर नहीं बनता। आत्मा निकल जाती है हमारी हमारी डेथ के बाद में, खत्म। जला दो, फूंक दो, गाड़ दो, कुछ भी कर दो, इसका बेकार है। तो बॉडी, बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट हेयर। तुम्हारे अंदर, इस बॉडी के अंदर जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। यही तो बात है, बस ये तो समझने की बात है। सर सर फिर ये वो था ना, क्या था सर वो चॉइसेस्ट का मतलब क्या था? चॉइसेस का मतलब जो उसकी इंसान की सबसे ज्यादा मनपसंद चीजें होती हैं, उनको डेवलप करना। मोबाइल कोई सर, मनपसंद चीज है क्या? ना, अंदर से अपने आप को डेवलप करना, दिस इज द मेन थिंग। सर इसकी स्पेलिंग क्या थी फिर? चॉइसेस, चॉइस से बनता है ना, CHOICEST। ओके सर। हमारा कल्चर कभी भी, कौन सी लाइफ होती है वो आपकी, मेटेरियल लाइफ की तरफ नहीं भागा है। हमारे यहाँ पर दूसरी वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा यहाँ का जो कल्चर है ना, आप कह रहे हो कि किस चीज को सीखा हमने, अतिथि देवो भव, ये माता देवो भव, पिता देवो भव, गुरु देवो भव, ये कल्चर है हमारा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार हम मानते हैं, ये है हमारा कल्चर। हमने उस चीज को समझा, ये है वो चॉइसेस्ट थिंग्स, चॉइसेस्ट गिफ्ट्स। आत्मा सब में एक जैसी है, तुम में, मुझ में, किसी में भी, सब में एक जैसी है, कुत्ते बिल्ली में भी, कबूतर में भी, चिड़िया में भी। डिफरेंस केवल बॉडी का है, ध्यान रखना। ये है हमारा सिस्टम। If you want to lead a peaceful life, you can't lead it with your refrigerator, with car, with money, with jewelry, with anything ना। इन चीजों से कभी शांति नहीं मिलेगी आपको। वो इंटरनल आपको जाना पड़ेगा, इंटरनल जाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। उस चीज के लिए कहा है कि वो तो इंडिया में ही मिलेगी केवल। चाहे किसी ने किसी को भी स्टडी किया होगा, बड़े बड़े दार्शनिकों को स्टडी किया होगा, जो साउथ, जो अपने वेस्टर्न कंट्रीज के रहे हैं, उनको स्टडी किया होगा, ग्रीक पीपल को किया होगा, और दूसरे लोगों को किया होगा आपने, लेकिन कहते हैं भारत विश्व गुरु रहा है। एक जमाना था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, मालूम है? यस सर। और टुडे अगेन वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग विश्व गुरु, मेक इट श्योर। आज हम वापस उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां भारत एक दिन विश्व गुरु कहलाएगा। इंडिया विल लीड ऑल द वर्ल्ड। एक समय आएगा जब भारत पूरे संसार को लीड करेगा, ध्यान रखना। आपको प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज यू आर इंडियंस।
आई फील प्राउड यार। भारत वो शक्ति है, राख भी हो जाएगा ना तो राख में से भी पैदा हो जाएगा, राख में से भी खड़ा हो जाएगा। ये भारत वो शक्ति है, वो ताकत है अपने आप में। और भारत की ताकत कोई दीवार, कोई नदी, कोई पहाड़ नहीं है। भारत की ताकत हो आप लोग। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर द वेल्थ ऑफ अ नेशन, not the money or not the jewels or not the bank or not the buildings or not the roads or not the highways, but the people of the country of a country are the real wealth of a nation. Make it sure. पर आज दुख इस बात का है कि हम लोग उस चीज को नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। नंबर ले आओ बस, यही एजुकेशन है, बात खत्म। नंबर कितने आए ये बता, अकल तेरे अंदर कितनी है छोड़, मैनर्स कितने हैं तेरे अंदर, भाड़ में गए मैनर्स। नंबर बता तू तो कितने आए। हाँ, सारा सत्यानाश हो गया। इंटरनल हमको कोई डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करता, क्या है क्या नहीं है। आई नो, नाउ लिसन टू मी सो केयरफुली। आई नो यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर मी से दिस। अरे ऐसा क्या है इंडिया में जो इंडिया में कुछ सिखा सकता है? जहां कह रहे हो स्वर्ग देखना है तो वहां जाओ, इंटरनल डेवलप करना है तो इंडिया जाओ, ये करना है तो इंडिया से सीखो, वो करना है तो इंडिया से सीखो। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई नो, यहाँ पर मैक्स मुलर कहते हैं आई नो यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर मी से दिस। I know that more particularly those, मीनिंग लिखते चले जाना। एक पैराग्राफ को लिखवा चुका हूं, बाद में मैं आऊंगा भी थोड़ी देर के बाद, तब करूंगा, इससे पहले आप लिख लो। नहीं लिख रहे हो तो भग जाओ यहां से, नहीं हो रहा तुम्हारे से काम तो निकलो यहां से बाहर। अभी पेन उठाओ और कॉपी उठाओ और लिखो, नोट्स बनाना सीखो। जैसे बारात में आए हैं, हमारे दोने पत्तल मंगवाओ, इनके लिए बढ़िया बढ़िया रसमलाई मंगवाओ, इनके लिए पूरी सब्जी मंगवाओ, इनके लिए लपड़ थप्पड़ लगाओ, फिर इनको खिला पिला के। सर 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 एक शायरी सर एक शायरी याद आई सर। सर एक शायरी याद आई है सर, प्लीज बोल दो सर। I know you will be surprised to hear me say this. I know that more particularly those who have spent many years of active life in Calcutta or Bombay or Madras will be horror struck at the idea that the humanity they meet with here, whether in the bazaars or in the courts of justice or in so-called native society, should be able to teach us any lesson. और ये जो उसने लिखा है ना, ये वहीं के लोगों के लिए लिखा है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं लिखा है। ये बात भी ध्यान रख लेना, समझ रहे हैं मेरी बात? हालांकि जो राइटर जो कुछ लिखता है, व्हाट एवर राइटर राइट्स इज फॉर ऑल, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ कंट्री और कास्ट और रिलीजन और एनीथिंग एल्स। जो आदमी लिखता है ना, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो सबके लिए लिखता है, कोई भी पढ़े, कहीं पर भी पढ़े उसको। बट मोर पर्टिकुलरली ही हैज रिटन फॉर द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रखिए इस बात को आप। चलिए, मैंने एक पैराग्राफ और कर दिया पूरा आपका। कुछ मीनिंग पूछना है तो पूछ लीजिए। सर जूइश मतलब यहूदी 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 यहूदी। सेमेटिक रेस सेमेटिक रेस जो आया है वो उसी के लिए आया है, यहूदियों के लिए। बोलो सर, पर सर वो सेंटेंस क्या था? मैं बता दूंगा सेंटेंस। बोलो आदित्य। सर नेटिव सोसाइटी। नेटिव सोसाइटी का मतलब यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं। सर नेटिव को लोकल कहेंगे ना? नेटिव का मतलब होता है निवासी। नेटिव सोसाइटी का मतलब यहाँ की जो सोसाइटी है उनमें जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए आ रहा है। सर मतलब ऐसे कि दिस प्लांट इज नेटिव फ्रॉम इंडिया और दिस प्लांट इज नेटिव फ्रॉम साउथ अमेरिका, है ना? फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, इसको सुनने की कोशिश करना। सर स्टक मींस हॉरर स्ट्रक लिख लो,
हॉरर स्ट्रक, दोबारा मैं लिखवाऊंगा अब आपको मीनिंग। आई नो यू विल बी सरप्राइज्ड, जो मुझे डिफिकल्ट लगेंगे वही लिखवाऊंगा मैं। आई नो यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर मी say this. I know that more particularly those who have spent many years of active life in Calcutta or Bombay or Madras, such people will be horror struck. ये हाइफन लगा करके लिख लेना है, हॉरर स्ट्रक कंपाउंड वर्ड है, हॉरर स्ट्रक, हॉरर स्ट्रक लिखो। हॉरर और स्ट्रक के बीच में हाइफन आएगा, छोटा सा जो डैश होता है। हॉरर स्ट्रक स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं अब, HORROR। इसके बाद हाइफन लगा के लिखेंगे स्ट्रक, STRUCK। हॉरर स्ट्रक का मतलब होता है एकदम से डर लग जाना। अरे ये सिखाएंगे हमारे को, ये क्या सिखाएंगे हमारे को? देखा है हमने इन लोगों को कैसे हैं ये बाजारों में इधर उधर, ये क्या सिखाएंगे हमारे, है ना? इस तरीके की फीलिंग। सब पॉन्डेड। पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब सोचना, विचार करना, गिविंग अ थॉट। So I know you will be surprised to hear me say this. I know that more particularly those who have spent many years of active life in Calcutta, बाहर के लोगों के लिए कह रहे हैं वो, समझ लीजिए आप, और बॉम्बे और मेड्रास will be horror struck at the idea that the humanity they meet with their, where there means in India, whether in the bazaars or in the courts of justice or in so-called native society, should be able to teach us any lesson. ये क्या सिखाएंगे हमारे को? धोती पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, बिल्कुल चप्पलों में घूमते रहते हैं, ये हमको क्या सिखाएंगे? समझ में आ रही है बात आपको? एक देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन भारत को सांपों का देश कहा जाता था, मदारियों का देश कहा जाता था, ऐसी इमेज बना दी थी हम लोगों की, और उस देश को कहा जाता था दैट इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और मैं आज भी कहता हूं आप लोगों से, अगर इस पूरे वर्ल्ड में से छांट छांट के चुन चुन के अगर एक एक इंडियन को हम अगर वहां से ले आए ना, बाहर से, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये संसार ठप पड़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, पहचानो अपने आप को। सर इंडिया के नाम तो ना कोई मसाले नहीं होते। ठप पड़ जाएगा, ठप ये देश, ये पूरा संसार ठप पड़ जाएगा, ध्यान रख लेना आप। आज भी अमेरिका के अंदर 40% से ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन है, लगा लो अंदाजा आप पहचानो आप। अब आपको हम बता रहे हैं तो कुछ समझो चीजों को, जानो आप क्या हो, आप पहले तो ये समझो आप अपने आप। सर हाँ सर, इंडिया में ही पेन ड्राइव का इन्वेंशन हुआ था ना? नहीं, ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं तो ये जानता हूँ कि जितने भी इन्वेंशंस आप आज के देख रहे हो ना, ये सब हम लोग बहुत पहले ही कर चुके थे। सर आपको पता है वाईफाई भी इंडिया में इन्वेंट हुआ था? अरे इंडिया में बहुत कुछ इन्वाइट हुआ है, आज तो फिर भी आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है सर। पहले तो बस आंख बंद करके सब कुछ देख लिया करते थे, और आज भी होता है ऐसा, आज भी होता है ऐसा। हम जानते हैं सिस्टम है सारा का सारा इंडिया में, लेकिन आज हम लोगों का सिस्टम बहुत सत्यानाश कर देने वाला सिस्टम है, ये अच्छा नहीं है। So that is why I always try to give you the things that can develop you, that can make you aware regarding the culture and regarding our country. और एक बात ध्यान रखो आप, कोई भी देश जो अगर आगे बढ़ रहा है ना, जब तक उस देश को अपने देश की बातें याद है, अपने देश का कल्चर याद है, अपने देश का सिस्टम याद है, जब तक कोई भी देश अगर अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है ना, वही आगे बढ़ पाता है। और अगर जड़ों से नहीं जुड़ के रह पाते ना, तो वो देश खत्म हो जाता है एक दिन। ध्यान रखना इस बात का। बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है यहाँ पर। और अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स शुड बी टॉट टू यू इन योर स्कूल्स, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग सच एनवायरनमेंट इन आवर स्कूल। अब मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल दैट व्हाट इज माय ड्यूटी। मैं चंद पैसों के लिए कुछ नहीं, मैं, मेरे लिए माय कंट्री इज फर्स्ट। I want to make you the
the useful citizen of this country. That is why I am here with you, not only just for teaching you English. So, Khair, let me therefore now I am carrying it on. Let me therefore explain. अब इसमें पैराग्राफ में क्या बात बताएगी भैया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ समरी, आपको कोशिश करना समझने की कि अब बहुत सारे लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल्स हु डू नॉट बिलोंग टू इंडिया, बट वो इंग्लैंड से अपने यहाँ आकर के रहे हैं आजादी के समय में भी और वैसे भी पहले भी और आज भी रहते हैं. तो वो लोग, उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये इंडिया के लोग हमें क्या सिखाएंगे, बाजारों में इधर उधर हमने देखा है इंडियंस को, इनकी जो हालत है, ये हमें क्या सिखाएंगे. समझ रहे हैं मेरी बात को आप. सिर पे गठरी बांध के रखी हुई है और अपने हाथ में लाठी है, और ये आदमी क्या सिखाएगा हमारे को, धोती बांध रखी है और कुर्ता पहन रखा है और उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा दिखावा हो या लाइक दैट. ये क्या सिखाएंगे ये लोग हमारे को. वही बात हो गई ना बाहर की. अरे सीखने के लिए अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता. बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है. बात आप कहते हैं ना कि डोंट जज एनी बुक बाय जस्ट इट्स कवर. किसी किताब को केवल उसके कवर से जज मत करो, किसी आदमी को केवल उसके लुक से जज मत करो. ध्यान रखना कौन कैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट मैटर, बट व्हाट इज देयर इन दैट थिंग और दैट पर्सन, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. सो लेट मी देयरफॉर एक्सप्लेन एट वंस टू माय फ्रेंड्स. अब जो लोग कहते हैं कि इंडिया क्या सिखाएगा हमारे को, देखा है हमने ऐसे लोगों को, उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ. जरा क्या समझाना चाहता हूँ मैं, सुनो, आ जाओ. अब मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है थोड़ा सा. So let me therefore explain at once to my friends who may have lived in India for years as civil servants or officers or missionaries or merchants, and who ought to know a great deal more of that country rather than one who has never set foot on the soil of Aryavrat. Aryavrat is also the name of this country, Aryavrat. That we are speaking of two very different Indias. No, when we talk about India, there are two Indias. You will say that what, two Indias? Now I am making it clear to you. I am thinking chiefly of India. Such, I am talking about the India that was 1,000, 2,000, it may be 3,000 or 5,000 or 10,000 years ago. I'm not talking about today's India. There are two Indias, ancient India, old India, and new India. समझ में आ रहा है? अतिथि देवो भवः, ओल्ड इंडिया. अतिथि जाए बाढ़ में, कब जाओगे तुम अतिथि, तुम कब जाओगे. दिस इज न्यू इंडिया. Students used to wait for the teachers, that was old India. But here, teachers wait for the students, this is new India. सर ये लिखा है क्या पैराग्राफ में? नहीं लिखा पैराग्राफ में, मेरे को बोलना है. परेशान बहुत हर्ट हो गया आज. So you know there are two types of two Indias. One is ancient India and the other one is new India. In ancient India, we had focus on our values, on our character. That was old India. But in new India, we have focus only our marks that we receive, that we achieve in our mark sheets. We have nothing to do with the learnings or with the development of ourselves inwardly. This is new India. So when I say that India can teach us too much, so that time
you must be clear that I am talking about the ancient or about the old India, where used to, where in a family, there used to be joint families. There would be 100 members, 200 members, 50 members in a family, and there was no difference between them. But now, that was old India. But now, even we do not like with our parents, with our brothers, with our sisters. We want to lead our life alone with our family only. This is the new India. बोलने पे आ जाऊंगा तो बहुत बोलता रहूंगा घंटों तक मैं. This is my favorite topic because I belong to India and India is my life. That is why I am so much attached with you, because you are also India. You are Indians. That is my attachment with you. समझ में आ गई बात आपको? मैं इंडिया को देखना चाहता हूँ हवाई जहाजों में उड़ना, और मेरी सोच ही है, पर मैं नहीं चाहता कि इंडिया. What is India? You are India. I am India. What is India? This is India. We are Indians. We are India. Not the buildings is India, or not the boundaries of India, and not the rivers are India. You are India. I am India. We are country. Feelings होती है यार, है? बात ये है. खैर, कोई बात नहीं. So let me therefore explain at once to my friends who may have lived in India for years as civil servants or officers or missionaries or merchants, and who ought to know a great deal more of that country than one who has never set foot on the soil of Aryabrat. That we are speaking of two very different Indias. I am thinking chiefly of India such as it was 1,000, 2,000, it may be 3,000, 5,000, or 10,000 years ago. They think of the India of today. This is the difference. Like you think about the India of today, not the India of that time. कहते हैं कि किसी जमाने में लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे. I'm telling you the difference of India. What are the two Indias? Ancient India, where there used to be no locks. Sir. Sometimes there used to be no doors. सब खुला होता था. सर But now, सर हमारे गांव में आज भी ताला नहीं लगाते. now आप देखिए जरा, सड़क को उखाड़ के ले जाते हैं. सड़क डाल गया, सर अगर ये सड़क गायब, कहाँ गई? ले गए उठा के, सड़क को उठा के ले गए. पंखों को उठा के ले जाएंगे गाड़ियों में से, हाल खराब कर देते हैं. मेरा कौन से बाप का है, फाड़ दो सीट. मेरे कौन से बाप का देश है? अरे तुम्हारे बाप का देश नहीं है तो क्या? हमारे बाप का देश है. हमारे बाप का है ना, हमारे बाप का है, सबके बाप का है, हमारा है यार. This is the basic difference between the people of Japan and India. आज का भारत बता रहा हूँ मैं आपको. सर अगर हम गेट पे ताले भी लगाए ना, वो घर ही उठा के ले जाएंगे. घर उठा के ले, ATM उठा के ले जाते हैं. आप क्या बात कर रहे हो? नहीं टूटता है तो? कभी कभी तो बैंक भी उठा. भाई वो सीटें भी पेन डाल डाल के फट. अरे क्या मिल रहा है तुम्हारे को? Why are you doing such things? सीटों को भी फाड़ देंगे. फाड़, इतनी सी फट जाए बस. अरे छोड़ो, स्कूल की खिड़कियों में देखो, जालियों में उंगली डाल डाल के ये छेद कर देते हैं इतना बड़ा. भैया कहाँ, पता नहीं कहाँ थी खिड़की. ये हाल है. हमारा स्कूल थोड़ी है, फीस देते हैं हम. तो फीस इस बात की देते हो तुम? पंखों से लटक जाएंगे, पंखों को टेढ़ा कर देंगे भाई, शीशों को तोड़ देंगे. व्हाट आर यू डूइंग यार? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर कंट्री यार. समझो किसी चीज को यार. लाइटें पंखे चलाए हुए छोड़ देंगे, हमारा थोड़ी है, स्कूल वालों का है. अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी किसी स्कूल वाले की नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी है, तो कंट्री की प्रॉपर्टी है यार. कहां से लाएं ये सोच? हम ये सोच आनी चाहिए हमारी एजुकेशन से.
हमारी एजुकेशन में तो बस नंबर ही नंबर है, नंबर ही नंबर है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कागला, आई बैक टू से दैट, आई एम इल, मम्मी सुनना, पापा सुनना। लिख ले बेटा, लिख ले बेटा, लिख ले बेटा, 4 बार लिख ले बेटा, हो गया याद, लिखिए ना कल, नंबर आ जाएंगे। उसके बाद का कोई लेना देना नहीं है अब। तो ये तो गाना बन गया। गाना ही है और क्या है, जिंदगी गाना बन रही है, तू गाने की बात कर रहा है यार यहाँ। आई एम थिंकिंग chiefly of India such it was 1,000, 2,000, it may be 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 years ago. They think of the India of today. They think of the India of today. आज का भारत मैंने बता ही दिया आपको, है? रील बनवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, पूरा डेटा चाट जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक 1.5 GB दे दो, चाहे 10 GB दे दो इनको। हाँ, हम की एक चीज नहीं करेंगे, ये है इंडिया ऑफ टुडे। इट मे बी, सॉरी एंड अगेन, और सुनो, when thinking of the India of today, they remember chiefly the India of Calcutta or Madras, the India of the towns. India of the towns. But you know, real India lives in villages. Make it sure. I look to the India of the village communities, the true India of the Indians. Thank you very much.